Welcome to Vikas Coaching Classes. Here this is Shrishti Roy and we'll be taking up our geography lecture, and the next topic is major domains of the earth. Okay, major domains of the earth मतलब earth पर क्या क्या है. So as you can see on the screen, it is written that the Earth is the only planet which has life. सिर्फ एक ही planet है जहाँ पर हम रह सकते हैं. There are the conditions which fulfill for the sustenance of life. So the surface of the earth is complex zone in which three main components of the earth meet, overlap and interact. ठीक है, मतलब अर्थ एक सरफेस है जिस पर तीन जोन्स होती हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं जो मिलते हैं. दे एक्चुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड दे मेक्स आवर लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. As you can see, lithosphere is a solid portion of the earth and is called the lithosphere. For example, ये आपका this is a line. So ये जो है ये पूरा land है. Okay, इस पर you can build up your house. So this is the solid portion. This is the solid portion of the earth. That's why it is known as lithosphere. As you can see, lithosphere consists of the earth crust, the thin layers of soil that contain nutrient elements with certain organism. तो यही होता है कि ये जो अर्थ है, you have the three levels होते हैं अर्थ के. You have the crust, okay, you have the crust, you have the mantle, you have the core inside. तो जो crust होता है, जो ऊपर का part होता है, वो होता है आपका lithosphere. Okay, there are two main division of the earth surface. On the basis of lithosphere, आप अर्थ को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called oceans. ठीक है, जो दो. So if you want to divide the earth, usually आपको या फिर पानी दिखेगा या फिर लैंड दिखेगा. तो वो जो लार्ज लैंड मासेस हैं वो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो पूरे पानी, जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, दैट इज योर ओशन. ओके, that is what your lithosphere is. So continent and ocean, they make a part of under the lithosphere only. You can see then, so the solid portion of the earth on which we live is lithosphere, and the gaseous layer that surrounds the earth is the atmosphere. Right? Atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found. Okay, तो जैसे ये आपका अर्थ है. Okay, this is your earth and you can find this is your earth. तो ये जो लेयर होती है, इसके ऊपर कुछ लेयर होंगी. ये जो लेयर होगी, this is your atmosphere. Okay, which even protects you from the harmful UV radiations. देन वाटर एक और लेयर होगी, एक और डोमेन है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. सो वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. सबसे ज्यादा लैंड मास बहुत कम है अर्थ के ऊपर, एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो मेकअप है वो है वाटर का. वाटर सबसे ज्यादा है, तो वट एवर द वाटर कंटेन इज, इट्स द हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर अब वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, आइस, वाटर. तो ये तीन फॉर्म्स भी होते हैं जिसमें योर वाटर एग्जिस्ट. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द वाटर. In the form of a water, that is a liquid, okay, and the water vapor, that is a gaseous form of the water. तो इन तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, and that is known as your hydrosphere. Then biosphere is a narrow zone जहाँ पे ये तीनों जो है ना, atmosphere, your lithosphere, your hydrosphere, where these three domains meet is your biosphere. So for example, this is your अर्थ. ओके, तो ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया. ओके, दिस इज योर लिथोस्फीयर एंड दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर. ये सारे मिलते हैं कहाँ पर? बायोस्फीयर में. तो यू कैन सी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, दीज आर द सबसेट ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है, एंड दैट इज वेयर आवर लाइफ एग्जिस्ट. Now we have already seen lithosphere, which is the solid portion of the earth, and it comprises of the earth crust, and it also have the layer of the soil. And you should know कि जो land mass
होते हैं उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज उन्हें हम ओशन बेसिन बोलते हैं. इफ यू विल सी द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. कैन यू नेम सम ओशंस? ओशंस हैं जैसे आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, यू हैव इंडियन ओशन, यू हैव सदर्न ओशन, यू हैव पैसिफिक ओशन. और ये जो सारे ओशंस हैं ये नहीं कि अलग अलग हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड. ओके, एंड जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ह्यूज लैंड मासेस हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, व्हाट आर आर कॉन्टिनेंट्स? वी हैव नॉर्थ अमेरिका, वी हैव एशिया एज अ कॉन्टिनेंट, ये सारे भी कनेक्टेड हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सारे ओशन है भले ही वो कहीं भी हो, सी वाटर का जो लेवल है वो एक जैसा है. इसलिए टुडे व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइजिंग सी लेवल. मतलब सी लेवल ऐसे वर्टिकली ऊपर नहीं होगा. सी लेवल मतलब ये जो है सी लेवल, अभी जैसे इसका लेवल ये है, अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यही सी लेवल जो है ना ऐसे राइज हो रहा है. ये ऐसे राइज नहीं हो रहा है, ये ऐसे फैल रहा है. तो अगर जो लैंड यहाँ पर आते हैं वो भी विच इज अ थ्रेट, वो सबमर्ज हो जाएंगे. ओके, सो हम सी से ही जो भी एलिवेशन है, जो भी आप मेजर करते हो कि माउंट एवरेस्ट का जो भी हाइट है, तो हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं. As you can see, the highest mountain peak is your Mount Everest. ये एक छोटे छोटे से फैक्ट है that you should know. The highest peak on the earth is Mount Everest, और उसका हाइट है 8,848 meters above the sea level. sea level से ही पूरे डिस्टेंस मेजर होते हैं. तो जब भी आप बोलोगे तो आप sea level को मेंशन करते हो, और वहीं से उसकी हाइट है 8,848 meters. एंड द ग्रेटेस्ट, अब जैसे कोई चीज होगी, माउंटेन्स जो हैं ये ऐसे होंगे, है ना, ये सी लेवल ये है, तो ये माउंटेन आपका हो गया माउंट एवरेस्ट. अब यही सी लेवल के नीचे भी कोई डेप्थ होगा, बहुत गहराई होगा. अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज, अ लेडी फ्रॉम यूएस, शी एक्चुअली वेंट टू द मारियाना ट्रेंच, जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारे पैसिफिक ओशन, एंड मारियाना ट्रेंच इज इन द पैसिफिक ओशन, यू शुड रिमेंबर दिस. एंड इसकी जो डेप्थ, ये तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा डीपर है, एंड इट्स डेप्थ इज 11,022 meters. तो ये जो है ये डेप्थ, और you should know the highest point on the earth and the deepest point on the earth. ना लेट्स सी, हमने लिथोस्फीयर में देखा था कि लार्ज लैंडमास होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट. अब हम कॉन्टिनेंट को थोड़ा देखेंगे तो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? All total we have 7 major continents. Okay, we have 7 major continents and they are separated by water bodies. आप अगर मैप देखोगे तो you have a continent known as Asia. India comes under the Asian continent. Europe है, there's the continents are Asia, Europe, North America, you have South America, Australia है, and Antarctica. Antarctica में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. Antarctica is a continent. एंड यू कैन सी कि सारा मोस्टली, इसलिए जो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है कि सारा जो लैंड है, मोस्ट ऑफ द लैंड मास वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है. नदर्न हेमिस्फीयर क्या था? जो इक्वेटर है, इट डिवाइड्स द अर्थ इन द 2 हेमिस्फीयर, नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो इक्वेटर था ये डिवाइड कर रहा था नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये सारा जो अर्थ है ना, यहाँ पर लैंड मास सबसे ज्यादा, सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम लैंड मास है. एक ही कॉन्टिनेंट दिखता है जिसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिका. And you should know which is the largest continent. Largest continent is your Asia. It covers 1/3 of the total land or area of the earth. And ये कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा. और जो प्राइम मेरिडियन था, जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता था, तो ये कहाँ आएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा. एंड जो लैटिट्यूड्स हमने देखे हुए थे, देयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, एंटार्क्टिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल. तो यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है इस कॉन्टिनेंट से? दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट. एंड एशिया, जैसे ये आपका एशिया है, ओके, दिस इज योर एशिया, दिस इज योर एशिया.
एशिया, और यहीं पर यूरोप है। तो एशिया ये है और यूरोप ये है, तो इसको डिवाइड कौन करता है? यूरल माउंटेन्स करते हैं, ठीक है। हु डिवाइड द यूरोप और एशिया को कौन डिवाइड करता है? इट इज द यूरल माउंटेन्स एंड लेकिन यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं। सो देयर आर, इससे हमने क्या सीखा? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया है। एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड करता है? यूरल माउंटेन्स। एंड विच लैटिट्यूड passes from the Asia is the Tropic of Cancer. Up next, we have next continent, that is Europe. Europe, you know, ये एशिया से थोड़ा छोटा है and this is west of Asia. The Arctic Circle passes through it. कौन सा latitude pass होता है? That is Arctic Circle, and it is bound by water bodies on 3 sides. Okay, it is bound by water bodies 3 sides. तो जैसे ये आपका, you know, this is your Europe. यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशन है, हियर इज योर आर्कटिक ओशन, हियर इज योर अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन है। सो ये तीनों साइड से वाटर बॉडीज से इट इज बाउंडेड बाय। देन वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज योर अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एशिया। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर आप अफ्रीका को अगर आप देखना चाहो तो इट लुक्स लाइक दिस, ओके, इट लुक्स लाइक दिस। तो ये ऐसे दिखता है एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। ये एंड दिस इज द वन कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं। यहाँ से आपका इक्वेटर भी निकलेगा, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलेगा, यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलेगा। सो यू शुड रिमेंबर विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं। So it is Africa and it also lies in the northern hemisphere. Okay, now Sahara, you know, जो सबसे बड़ा hot desert, which is the largest desert on the earth, is Sahara Desert. Sahara Desert भी अफ्रीका में है. It is along this path. यहाँ पर आपका Sahara Desert है और this is the largest hot desert which is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. जैसे यूरोप था कि ये तीनों साइड वाटर बॉडीज से था, इसी तरीके से द अफ्रीका इज ऑल्सो बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज। यहाँ पर जैसे आपके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यू नो, यहाँ पे अरेबियन सी है, दिस अ पर्शियन गल्फ हियर यू हैव द सदर्न ओशन। तो ये भी चारों साइड से वाटर बॉडीज से इट इज सराउंडेड बाय। एंड यू शुड नो जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है विच इज नाइल, इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ओके, सो आपको देखना होगा मैप पर, आप देखोगे कि कौन कौन सी जगह हैं जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes by. Then you have the next continent is North America. USA जो आपने सुना ही होगा, USA किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। ओके, USA नॉर्थ अमेरिका, एंड नॉर्थ अमेरिका लुक्स लाइक दिस, यू नो। नॉर्थ अमेरिका जो है ये आपका ये ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपका यूएसए है, यहाँ पर आपका कनाडा है, ओके, यहाँ पर आपका मैक्सिको है, दिस इज योर मैक्सिको। तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज लिंक टू, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, आई एम मेकिंग द डायग्राम हियर। यहाँ पर आपका एक्चुअली साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज लाइक दिस, थोड़ा सा इट कैन बी डिस्टर्ब्ड। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका काय से जुड़े हुए हैं? इट इज दे आर एक्चुअली इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस एक लैंड बॉडी होती है, इट इज अ बॉडी ऑफ लैंड विच कनेक्टेड द टू लैंड मासेस। ओके, स्ट्रेट आपने सुना होगा, स्ट्रेट होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, और इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है विच कनेक्ट्स द टू एक्चुअली द कॉन्टिनेंट्स और द लैंड। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है? इस्थमस ऑफ लैंड, Panama, sorry, and the continent lies completely in the northern and western hemisphere. अब यहाँ पर भी, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के आजू बाजू कौन से ओशन है? तो वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है। देन योर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस इज द कॉन्टिनेंट विच इज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर भी कौन से ओशन है? तो ईस्टर्न यू हैव द पैसिफिक ओशन एंड यू हैव द अटलांटिक ओशन। माउंटेन रेंजेस हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टेकिंग अप द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ
पर विच इज अ माउंटेन रेंज जो साउथ अमेरिका से है, वो है इंडिस. ओके, इट इज अ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और ये नॉर्थ टू साउथ वहां से जाता है. और सबसे लार्जेस्ट रिवर इज अमेजॉन. लॉन्गेस्ट रिवर की बात आती है तो इट इज नाइल, और लार्जेस्ट रिवर जो होता है विच इज अमेजॉन. लार्जेस्ट मतलब जो फैली हुई है, लार्जेस्ट रिवर हम बोलेंगे जो फैली हुई है. तो यहाँ पर ये जो अमेजॉन है, ये पूरे में ऐसे फैली हुई है, सो इट इज अ लार्जेस्ट रिवर. अगर लॉन्गेस्ट रिवर तो उसकी लेंथ कितनी है, जैसे नाइल ऐसी जारी हुई है तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इसलिए इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर. Then you will see Australia is also your continent. तो ये क्वेश्चन होता है, a country which is a continent in itself, it is Australia. Australia is in southern hemisphere. कौन कौन से continent southern hemisphere में है? South America है, Australia है. Australia is like it is like this. It is slightly like this. And ये भी चारों तरफ से ये ocean और sea से है. यहाँ पे कुछ Indian Ocean आ जाएगा, यहाँ पे Southern Ocean, यहाँ पे थोड़ा बहुत Pacific Ocean भी है. There are some of the सीज. और ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है. ओके, इट इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. देन द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज योर एंटार्क्टिका. ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में है. और जो हमने देखा था, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अगर साउथ पोल का बोला जाए तो ये पूरा आपका एंटार्क्टिका ही है. ओके, क्योंकि ये परमानेंटली इट इज कवर्ड विद द थिक शीट्स एंड देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. हमारे ये भी बोला जाता है वी हैव सम रिसर्च स्टेशन है हमारे, एंड वी हैव द रिसर्च स्टेशन दैट इज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. रिसर्च स्टेशन, वहां पे रिसर्च वर्क चलता रहता है. तो इंडिया के दो हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. आप जैसा कि आप देख सकते हो, एज आई हैव टोल्ड यू, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है. दीज आर द कॉन्टिनेंट, ओशन. देर आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. यू हैव नॉर्थ अमेरिका, यू हैव साउथ अमेरिका, यू हैव एशिया, यू हैव यूरोप, यू हैव अफ्रीका, यू हैव ऑस्ट्रेलिया, यू हैव एंटार्क्टिका. और एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड करता है? सो इट इज अ यूरल माउंटेन्स. हियर इज योर एटलांटिक ओशन, हियर इज योर पैसिफिक ओशन, यू हैव इंडियन ओशन, यू हैव आर्कटिक ओशन है आपका, यू हैव द सदर्न ओशन. तो ये तो अभी हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा हुआ था. एंड दैट कम अंडर द लिथोस्फीयर. जो नेक्स्ट डोमेन जिसकी बात की गई थी, वाटर बॉडीज ओवर द अर्थ, इट इज द हाइड्रोस्फीयर. ओके, तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड. ओके, अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट क्योंकि पूरा वाटर है. फ्रेश वाटर भी नहीं है, वो सॉल्ट वाटर है 71% एंड 29% इज योर लैंड. सो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स. वाटर की क्या फॉर्म होंगे? एक सॉलिड है तो आइस है, वाटर इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड द गैसियस फॉर्म इज अ वाटर वेपर. सो एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स. आइस कहाँ पे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, है ना. वाटर वेपर आपको दिखेगा इन एटमोस्फियर. सो 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी. ये भी एक आयरनी है कि दो अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, बट हमारे यहाँ पर फ्रेश वाटर सिर्फ 1% ही है, और सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर है जो कि इट्स अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज. सो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन फॉर्म आइस शीट में है, और आइस शीट और ग्लेशियर ही है, दैट इज द सोर्स ऑफ द रिवर. ओके, तो है डिस्पाइट भले ये एक ब्लू प्लैनेट है, बट अभी भी हमारे यहाँ पे देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर क्योंकि फ्रेश वाटर अर्थ पर नहीं होता है. हाइड्रोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो हम ओशंस के सबसे पहले लेते हैं. सो ओशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. आपको बताया था स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी जो दो ओशन को कनेक्ट करता है. अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इस्थमस होता है जो दो लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है. सो देयर आर द चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ वाटर. वाटर 3 तरीके से मूव होता है, एक वेव्स के फॉर्म में, एक टाइड्स के फॉर्म में, और एक ओशन करेंट्स के फॉर्म में. ओशन करेंट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इन द हायर स्टडीज. अभी यू शुड नो 3 फॉर्म होते हैं जिसमें वाटर मूव करता है. यू हैव वेव्स, यू हैव टाइड्स एंड ओशन करंट. नाउ द 5 मेजर ओशंस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 है. कितने ओशंस है? 5 हैं. एंड दोस 5 ओशंस आर पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, जो कि आपने पीछे डायग्राम आया था वहां पर देखा ही था. सो द पैसिफिक ओशन
ओशन, और उसमें से भी जैसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज द एशिया, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन का शेप क्या होता है? तो यू नो मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ऑन द अर्थ, जिसकी यू नो डेप्थ है 11,022 मीटर, इट इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन ओनली. और पैसिफिक ओशन का शेप कौन सा होता है? इट इज एक्चुअली अ सर्कुलर इन शेप. ठीक है, सर्कुलर इन शेप है. और कौन कौन से कॉन्टिनेंट इससे सराउंडेड है? नॉर्थ अमेरिका है, एशिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अमेरिका है. सब लोग यू नो पैसिफिक ओशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ. Then next ocean you will see is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean जो है ना, Atlantic Ocean has a bit of you know it is S shape. ये S shape में आता है. एंड यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पर आपका यू नो यू हैव द अफ्रीका है. तो ये पूरा जो है ये आपका अटलांटिक ओशन है. एंड इट्स शेप इज एस. ओके, आप देख सकते हो कि ये इंटेंडेड होता है थोड़ा सा यू नो इसकी जो बाउंड्री है क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से वहाँ क्रैक है, तो वो थोड़ी सी इंटेंडेड बाउंड्री है. लेकिन जहाँ इंटेंडेड बाउंड्री होती है द कोस्ट आर फेवरेबल लोकेशंस होती हैं फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. और सबसे बिजीएस्ट अगर पूछा जाए कि बिजीएस्ट ओशन कौन सा है, तो इट इज द अटलांटिक ओशन. देन यू हैव द नेक्स्ट ओशन इज योर इंडियन ओशन. इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नेम पर है, एंड दैट इज आवर प्राउड इंडिया. सो द शेप ऑफ ओशन ट्राइंगुलर है. तो यू शुड ऑल्सो नो द शेप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. जैसे पैसिफिक का सर्कुलर है, अटलांटिक का इट्स यू नो एस शेप है, इंडियन ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप. और इसे जैसे ऊपर इंडिया है इंडियन ओशन में, बाजू में अफ्रीका है, और साइड में ऑस्ट्रेलिया है. तो ये तीन कॉन्टिनेंट्स हैं जो ये सराउंडेड हैं बाय दिस इंडियन ओशन. देन यू हैव द सदर्न ओशन. सदर्न ओशन पता पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये एंटार्क्टिक के ही है. और एक है आपका आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन ऊपर है, जो नॉर्थ पोल हम बोलते हैं, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है. एंड इट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन बाय अ बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट है एक आपका नॉर्थ अमेरिका और यू नो एशिया के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और या रशिया के बीच में, जो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को करता है. एंड आर्कटिक ओशन भी कौन कौन से कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है? ऊपर आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप है. Then we come to the next domain of the earth is your atmosphere. Now the earth is surrounded by a layer of gas. आपको मैं हमेशा बोलती हूँ यूवी रे से कौन आपको बचाता है? इट इज द एटमोस्फियर. और एटमोस्फियर में गैसेज हैं. सो एटमोस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. अब वो गैसेज कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज एन इंटीग्रल एंड important aspect of the planet is your atmosphere. यहीं पर air है that we breathe and it protects us from the harmful rays of the sun. Now जो atmosphere है ये कम से कम 1600 किलोमीटर्स तक ऊपर जाता है, एंड इसके भी 5 लेयर्स हैं. ओके, एटमॉस्फेयर जो लेयर्स ऑफ दी अर्थ हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, बट एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. और ये जो लेयर्स होती हैं इन्हें, ये जो 5 लेयर्स हैं, दीज आर द ट्रोपोस्फियर. तो ये आपका ट्रोपोस्फियर है, दिस इज योर स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज योर मीजोस्फियर, दिस इज योर थर्मोस्फियर एंड दिस इज योर एक्सोस्फियर. तो एटमॉस्फेयर का पूरा जो टोटल हाइट है दैट इज 1600 किलोमीटर्स. ओके, एंड द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर जहाँ के मोस्टली हम यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर and thermosphere. Now जब हम contribution when we talk about the you know gases का composition कैसा है, तो सबसे ज़्यादा जो गैस सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में है that is नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है that is 78%. you can see ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये 1% वॉल्यूम है. अब ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन इज अ ब्रेथ ऑफ लाइफ. इट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर्म that is present
ऑन द अर्थ जिसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन जो कि 78% आपके एटमॉस्फेयर में है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती, उसके लिए और भी प्रोसेस होते हैं जो नाइट्रोजन को यूज में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि भले ही सबसे डेंजरस अभी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सिर्फ 1% है। इसलिए इसका अगर 1% से 2% अगर हो जाएगा दैट वुड बी अ डिजास्टर्स ऑन अर्थ। तो इट इज ऑल्सो, बट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्पफुल रहता है। सो ऑल दी गैसेज हैव देयर वन और दी अदर एसेंशियल फीचर है जो कि जरूरी है। नाउ एटमॉस्फेयर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर उनको डिवाइड किया हुआ था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यू हैव मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नाउ ऑन द बेसिस डेंसिटी ऑफ डेंसिटी और हाइट का एक रिलेशन है। Density and height have a relation, and that relation is as you move up you will as you move up, okay, आपका density जो है वो कम होते जाएगा, okay, as you move up your density will be decreasing। इसलिए जो आप when you go on the mountains वहाँ पे क्यों कम होता है, क्योंकि एयर जो वहाँ की है वो बहुत ही थिन होती है। So the density has a inverse relationship with the height, okay, as the height goes up your density actually decreases। तो माउंटेन पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। टेम्परेचर का भी एक इनवर्स रिलेशन है विद द हाइट, टेम्परेचर भी कम होते जाता है। सो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रेशर बेल्ट्स हैं, आपको पता चलेगा। अच्छा, ये आपको एक चीज याद रखनी है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, एंड द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ विंड इज मूविंग एयर, एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Then you have the important domain of the earth is biosphere। बायोस्फीयर हमने देखा था जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं। सो इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, जहां पे हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। मैमल से लेकर छोटे से माइक्रोब से लेकर सभी लोग रहते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स including humans are linked to this, and the organism in the biosphere they can be divided into plant kingdom and animal kingdom। और यही जो तीनों domains है ना, they interact with each other and they affect each other in some way or the other। जैसे आप देखोगे कि forest is important for providing you oxygen, forest is also important for providing you furnitures, okay, but forest को हम clear भी करते हैं agriculture cultivate करने के लिए, but अगर वो करते हैं तो soil erosion भी होता है। Similarly earth surface may be changed। ये earthquakes जो आते हैं it is because of our some of the activities। there could be land submerge हो सकता है because of the sea level change। parts of Andaman and Nicobar submerge हो चुके थे when there was a tsunami। so discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable, and it also, this is a pollution that causes unsuitable, the water is unsuitable that we cannot even drink it। so that is where it also damages the other। तो अगर biosphere पे कोई असर पड़ेगा there will be there will be same effect on the other domains as well। So here we complete this lecture। so you now at the end of the lecture you came to know the 4 domains of the earth, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere। आपको continents के बारे में पता चला and oceans के बारे में। so we will see you in the next lecture। till then thank you and I hope you like the lecture।